when we see that Pakistan is a crossroad, as I said, that we have been saying for last 74 years, that Pakistan is a crossroad. Uh, I would say I would talk slightly in a different tone today. Uh, I feel that अभी तारिक साहब ने बात की IMF की, जो उनकी रिपोर्ट अभी आई है. Fortunately, I had called the IMF representative to my house for a lunch last week. She came to us, had lunch with us, with two or three people. And I can assure you that their understanding of Pakistan is not which is desired. I had a very close 2-hour discussion with her at my home last Monday. Monday की बात. And she has come from Guatemala. She was in Guatemala for last 20 years, 10 years. The unfortunate part is that one of the person who was invited by me for the lunch was Mr. Salim Raza, ex-governor of the State Bank of Pakistan. And he said to me, Shabbar यार क्या वक्त आ गया कि हमें गुटेमाला के बारे में सुनना पड़ रहा है. और वो एक 50 साल की लड़की स्पेन से आई है और हम दोनों बैठे हुए 40-50 साल के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं अपने फील्ड के, और हम एक गुटेमाला से एक्सपीरियंस सुन रहे हैं. स्पेनिश खातून जो 30-45 साल उम्र है, वो हमें बता रही है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है. It was a terrible lunch I had at my home last week. So what I'm saying is that my first impression is that, and I am very clear that these institutions, IMF, they are obviously they are lenders and they have their own views, but they cannot decide what is our position. I will say that Pakistan is a crossroad for two things. And I think that if you look at what Tariq Saab has said, and the undertone of that thing is that the term when Tariq Saab was talking, the period 2000 to 2008, if you take out the history of Pakistan from 1947 to 2022, the period from 1999 or 2000 to 2003-4, which was the period of General Musharraf, it was if you look at all the commercial history of Pakistan, that is considered to be a better period of Pakistan governance, at least for the economic side. The unanimity of the view है that ये 2-3-4-5 साल थे, 4-3 साल politicized हो गए, काफ में चले गए, उसका अलग subject था. But those were the better years for Pakistan. And I was asked by someone to have a research on this, that why those were better and the other period were not good, so good. It's irrespective of whether it was a martial law or it was not a martial law, or one-man rule or parliament or its. And the report I presented last week was that the only difference which was there between those 3-4 years and the other periods of the Pakistan economic government is that government introduced a concept of empowered regulators. Empowered regulator means NEPRA, OGRA, TDAP, State Bank of Pakistan, SECP, Competition Commission of Pakistan, PTA. These were the regulators of Pakistan economy, not the ministries of Pakistan economy. If you look at the Pakistan history, economic history, there's from 2000 to 2004, Pakistan established very high quality regulators. And almost all the regulators were manned by professionals. For example, NEPRA was chaired by the father of Mr. Justice Munib Akhtar, Mr. Javed Akhtar. And there were people, so the difference was that the Pakistan's economic policies were not being made in the ministries,
but they were being made in the regulators, and those regulators were actually creating an environment for the economic place for Pakistan, and that was the reason. The question, and if you look at any time after that, if you look at today, if you look at the time of Mr. Asad Zardari, if you look at the time of Mr. Nawaz Sharif, the first thing they do is to disempower regulators. आपको देखें एसएससी में 2 कमिश्नर नहीं है इस वक्त. नेपरा का चेयरमैन जो नेपरा के जो बॉडीज आती है, कभी आता है कभी चला जाता है. जो रेगुलेटर्स को आप सबसर्विएंट करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्ट्रीज के अंदर. ये पॉलिटिकल सिस्टम का हमारा एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया है, और इसको TDAP is an example. TDAP is another example. Even FBR is an example. Why people say कि आप क्यों छोड़कर आ गए? मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मैं छोड़कर आया किसी ब्रिगेड की वजह से नहीं आया. मैं छोड़कर आया अपने साथियों की वजह से, क्योंकि मेरा टोटली डायगोनल व्यू था अबाउट इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म द नेशनल स्टैंड. मैं FBR को PRS बनाना चाहता था, पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस. आई वांटेड टू गेट FBR आउट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. ये मेरा इख्तिलाफ था FBR में गवर्नमेंट के साथ, कि मैं FBR को गवर्नमेंट के सर्विस से निकालकर पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस लाइक स्टेट बैंक बनाना चाहता था. और इस पे मेरे पास अनफॉर्चुनेटली सोहेल भाई दोनों पावर हाउसेस की सपोर्ट थी. दोनों पावर हाउसेस की सपोर्ट मेरे पास थी. मेरे साथ जो बंदा डिसएग्री किया वो मेरा अपना प्रोफेशनल था. वो तैयार नहीं थे कि जी आप इसको कर दें. दोनों ने मुझे कहा आप कर दें, आप करें. तो व्हाट आई ट्राई टू से कि हमारा जो अब आज 74 इयर्स के बाद एक्सपीरियंस है, मैं एज ए स्टूडेंट समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को आपको चलाना है इकोनॉमिक साइड पर, तो आपको रेगुलेटर्स का जो मॉडल है, जैसे नेपरा है, टेमरा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, इनको रेगुलेटर के तौर पे ऑपरेट करना पड़ेगा. इनको मिनिस्ट्रीज के इन्फ्लुएंस से निकालना पड़ेगा. इनको टेक्निकली एम्पावर करना पड़ेगा. अगर आपने ये नहीं किया तो एक्स की गवर्नमेंट आ जाए, वाई की गवर्नमेंट आ जाए, बी की गवर्नमेंट आ जाए, सी की गवर्नमेंट आ जाए, डी की आ जाए, ये चीज नहीं हो सकती. आई थिंक when you say the crossroad, so the people who are relevant in this country have actually decided that the regulators will come back. Now the question, Sohail bhai, is that who will be the controller of that regulator? Either we control the regulators by the political system where Mr. तारिक साहब ये कहते हैं कि जी उस रेगुलेटर को मैं कंट्रोल करूं वाया PM. एक मॉडल मेरे पास ये है कि बाय एंड लार्ज रेगुलेटर्स को मैं पॉलिटिकल एक इफेक्टिव PM के थ्रू कंट्रोल कर लूं. मैं पर्सनली उस मॉडल से डिसएग्री करता हूं. मैंने जो मॉडल गवर्नमेंट को दिया है वो ये नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक डिफरेंट मॉडल दिया है. वो मॉडल मेरा ये है कि आप एक पोस्ट है पाकिस्तान में जिसको आपने कभी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया, वो है डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन. डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इज अ पोस्ट which is a non-political post. जो मॉडल मेरे जहन में है वो ये है कि आप डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को एम्पावर करें, उसको डीपॉलिटिसाइज करें और तमाम रेगुलेटर्स को उसके अंडर में दे दें. कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं हो सकती जब तक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन उसको अप्रूव नहीं करेगा. मिनिस्टर ये नहीं कर सकता वो कहे कि मुझे अपने हल्के में बिजली लगानी है, ये नहीं हो सकता. इंडिया में यही हो रहा है. आप इंडिया की इकोनॉमी को समझें. इंडिया में ये हो रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी इसका होता है डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन. और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो होता है वो आदमी वो होता है जो नॉमिनी, आप समझे कि वो जिसका भी आप नॉमिनी समझ ले, वो आदमी चेंज नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी की वजह से. कोई आए XYZ ABCD, मुझे कोई कंसर्न नहीं है. I am a Deputy Chairman Planning Commission. I will regulate all the regulators.
आई विल डिसाइड टीडीए के लिए क्या करना है। जो असेंबली में बैठ के उन्होंने लड़ाई झगड़ा किसी को गाली गलौज करना है करते रहे, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। उन्होंने बैठ के आपस में एक दूसरे की जो भी करनी है गुफ्तगू करते रहे, एक दूसरे के हल्के में जाके उस बातें करते रहे। वो उस पॉलिटिकल सिस्टम से आप इसको डाइवोर्स करें, क्योंकि अगर आपने उस रेगुलेटर्स का सपोर्ट का हेड आपने पीएम को बनाया है इस सोसाइटी के अंदर, तो ये सोसाइटी नहीं चल सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है 40 साल का, तारिक साहब का डिफरेंट हो सकता है। मैंने इसको बहुत अपने इसको स्टडी किया है कि आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक सोसाइटी को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सोसाइटी में कोई खराबी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो आदमी नई गवर्नमेंट में आता है उसका पहला काम ये होता है कि जितने भी सारे बंदे थे सबको फारिग करो। सारे रेगुलेटर्स के चीफ चेंज रहते हैं पाकिस्तान में। जिस दिन गवर्नमेंट आती है उस दिन तमाम रेगुलेटर के चीफ चेंज हो जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी, कल गवर्नमेंट आएगी, सबसे पहले क्या होगा, सारे रेगुलेटर के चीफ चेंज हो जाएंगे। नेपरा का चीफ चेंज हो जाएगा, ओगरा का चीफ चेंज हो जाएगा, कैमरा का चीफ चेंज हो जाएगा, आपका स्टेट बैंक गवर्नर चेंज हो जाएगा, एफबीआर चेंज हो जाएगा। पूरी जो इफेक्टिव टीम है जो पॉलिसी डिसाइड कर रही है इकोनॉमी की, वो चेंज हो। मैं जो बात कर रहा हूँ ये रियलिटी है, ये रियलिटी। इसको गौर करें, ये इस बात की नहीं है, इस पे ये बड़ा, इसके ऊपर बहुत सोच समझ के सोच। अब उसको उस आदमी को जिसका हम नाम डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन दे रहे हैं, उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट देनी पड़ेगी। उसको आप जो मर्जी कह दें, आप उसे जो मर्जी नाम दे दें। ये नहीं हो सकता कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाब आए, वो कहे जी लाहौर में सारे फूल लगा दो और मियां वाली में कुछ नहीं करो। हमारे तो ये होता है ना कि मेरा हल्का है ना जी। द क्वेश्चन इज, क्या इकोनॉमिक डिसीजंस इन पाकिस्तान बी लेफ्ट टू द पॉलिटिकल विंड्स और द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर नॉट एस्टेब्लिश्ड? आप ये बोलेंगे कि आप एक अनडेमोक्रेटिक बात करते हैं। You can say it's an undemocratic thing. The question here is that should we have a empowered deputy chairman planning commission? अगर आपको याद हो, आप में से थोड़ा जो लोग ज्यादा एज के हैं, 1970 से पहले एक साहब हुआ करते थे एम एम अहमद। वो कभी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। पाकिस्तान की हर इकोनॉमिक पॉलिसी वो डिसाइड करते थे। जो मिनिस्टर है, जो एमपी है, जो एमएनए है, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो बेचारा आप क्या करेगा, वो शाम को हल्के में जाना है, उसने अपने पार्टी के 370 एमएनए को हैंडल करना है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर नाउ, वी आर अ क्रॉसरोड टू डिसाइड नाउ कि क्या हमें इकोनॉमिक पॉलिसी को इनके हाथ में देना है। ये सवाल है इस वक्त, क्या इनके हाथ में देना है। 23 में एक बंदा आ जाएगा इलेक्शन में और इनके हाथ में दे दे कि सर आप आ जाएं और आप आके ये पकड़े पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी। आपकी मर्जी का पेपरा चेयरमैन आ गया, आपकी मर्जी का नेपरा चेयरमैन आ गया, आपकी मर्जी का चेयरमैन एफपीआर आ गया, आपकी मर्जी का गवर्नर स्टेट बैंक आ गया। मुझे इंटरेस्टिंग बात किसी ने की कि सर आप बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक, अगर जो आज गवर्नर स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट चेंज होती है, क्या ये रह सकेगा? अगर टर्म 5 साल की भी है तो रह सके, फिर भी रह सकेगा। ये क्यों आपने स्टेट बैंक का लॉ चेंज कराया? इसलिए चेंज कराया कि आपको पता है कि ये जिस दिन गवर्नमेंट आएगी आप इसको फारिग करेंगे। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मैं बात कर रहा हूं, गौर करेगा, ये रिकॉर्ड करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में कोई नहीं करेगा। आप सोचेंगे क्या हम क्या बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रेगुलेटर्स की, मैं रेगुलर बनने को तैयार हूं, सिविल बाजार रेगुलर बनने को तैयार है, बट मेरी सिक्योरिटी क्या है, मैं अपनी जिंदगी लगाने को तैयार हूं। मगर कल को जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगी, वो मैं नैब के सामने खड़ा होऊंगा और वो गवर्नमेंट एक अपना 7 सेक्रेटरी वाला आदमी लाके बैठा देगी वहां पे, और आप सारे दबाव हो जाएंगे कि मैं कभी यूं चल रहा था वो यूं चलेगा। तो पाकिस्तान जो आज तक तकलीफ गुजार रहा है, जो देखिए पाकिस्तान कितनी तरक्की की थी 1947 से 70 तक, पाकिस्तान रीजनेबल तरीके से चल रहा था। ये उसके बाद से जिस दिन से पाकिस्तान में प्लानिंग खत्म हुई है और रेगुलेटर्स को खराब करना शुरू हुआ है, उस दिन से पाकिस्तान खराब हुआ है। अगर आप उसको डीपली देखें ना, हुआ क्या है, 5 साल मंसूर, 5 साल मंसूर होगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर। लेकिन आपने फैसला कर लिया कि आप लाहौर में मेट्रो चलाएंगे, ठीक है, चला दिया आपने, क्यों? इसका क्या बेस है? किसी प्लान में था, किस सिस्टम में से आया था, कहीं लिखा था कमीशन मिलना तक, साहिवाल में पावर प्लांट लगेगा, ये कहां से आ गया?
लगा गलत है नहीं है? क्या ये किसी इंटीग्रेटेड प्लान का हिस्सा है? क्या ये ऐसे मशरूम पे ग्रो हो रहा है? मैं आ गया, मेरा हल्का लड़का है, मैं लड़खाना में बना दिया, वो आ गया कड़क से उसे कड़क में बना दिया। क्या इंडिया में ऐसा होता है? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर काम कर सकता है? द प्रॉब्लम इज कि हम ये डेमोक्रेसी के नाम पे जो चिक चिक हमने पाली है, कि हम इकोनॉमिक्स, हम इस वक्त पॉलिटिकल लोग इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पर। हमें मुझे कोई पसंद नहीं है, पावर में आए, प्राइम मिनिस्टर बने, गाड़ियां चलाएं, कोई परवाह नहीं है उनकी, बट वो मेरी इकोनॉमी को तबाह नहीं करे। द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी। यार ठीक है, मुझे आप कहते हैं फॉरेनर्स अकाउंट बंद होंगे, मतलब फिर 10 साल तक बंद होंगे। ये नहीं हो सकता है कि आज खोल दिए, कल बंद कर दिए, कल खोल दिए, बाद परसों बंद कर दिए। सो द फर्स्ट क्रॉस रोड विच इज गोइंग टू टेक प्लेस, I am telling you, which is going to take place before 2023 election, is whether the Pakistan economic policy will be governed by a Deputy Cabinet Planning Commission, not being a Prime Minister, supported by the people, power to be in Pakistan and outside Pakistan. This is the first crossroad. इसको आपने क्रॉस करना है. The second crossroad is that all regulators, economic regulators, they all should be headquarters in Karachi. This is the second petition. They all should be away from the ministries. There is no point. Why State Bank of Pakistan is in Karachi? Why? How come the SECP in Islamabad, when the stock exchange is regulated by SECP, they should be in Karachi. So the ministries can live in Islamabad, but the regulators who are relevant, for example, OGRA, oil and gas, the ports, everything is in Karachi. So the second decision has to crossroad is that we have to re-transfer the capital back to Karachi by transferring the regulators to Karachi. We don't want ministries. हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें पैमरा, ओगरा, SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इकोनॉमिक रेगुलेटर्स हैं। इसकी दो रीजन है, पहली बात आपको मैन पावर मिल जाती है, दूसरी बात तो होती है आपकी इंटरफेरेंस कम होती है। वो रोज शाम को जो मिनिस्टर में जाके ना हुआ है और चेयरमैन ओगरा जाके और बैठा जाके मिनिस्ट्री में बैठता है मीटिंगों में, वो खत्म हो जाता है। स्टेट बैंक जितना मर्जी बोले, इट इज बेटर बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So this is the second crossroad. The third this is the third crossroad. The third crossroad is that तारिक साहब ने बात की कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, मैं नहीं करता हूँ एक्सपोर्ट का इश्यूज पे। मेरा एक और सवाल है तारिक साहब से कि क्या टैक्स उससे कभी, बल्कि मैंने अभी कल ही दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका में इंटरव्यू, एक हमारा सीपेक का एक कॉन्सेप्ट है कि हम चाइना से, शेंजन से जो इंडस्ट्री डिसलोकेट होगी वो हम यहां लाके लगाएंगे और उससे हम पाकिस्तान को चलाएंगे। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेवकूफी का आइडिया कोई नहीं। आप मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि शेंजन में जो गारमेंट फैक्ट्री लगी है वो आगे रशिया में लग जाएगी, चले लग गई। अगर रशिया में वो लग गई तो जो शेंजन में काम करता है वहां मेजोरिटी काम करती हैं औरतें। आप तो घर से निकालने को तैयार नहीं है। मेरे हिसाब से, with all due respect तारिक साहब, the biggest problem against export of the textile in Pakistan is the non-utilization of female worker for garment. आपने पाकिस्तान के आधे माशरे को बुर्का पहना के कमरे में बिठा दिया। कोई दुनिया की तरक्की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में हो ही नहीं सकती। दुनिया के किसी माशरे में कभी टेक्सटाइल की तरक्की नहीं हुई जब तक औरतें गारमेंट की फैब्रिकेशन में नहीं आई। चाइना इसलिए चीप था कि लेडीज वर्कर थी, बांग्लादेश इसलिए चीप है कि लेडीज वर्कर है। ये नहीं हो सकता कि औरत बैठ के घर पे 8 बच्चे पैदा करे और आप कह रहे हैं मैं एक्सपोर्ट भी 80 बिलियन कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सो द थर्ड क्रॉसरोड इज, एंड आई एम extremely happy with that news which I read yesterday, that we had a naval exercise with Israel in the Arabian Sea. That paradigm which we are facing for the last 79 to 2022, that is now finished. वो जमाने गुजर गए।
वो जो हमने एक अजाब डाला था अपने ऊपर, वो अजाब हमारे सर से गुजर गया। हमने ही डाला था, किसी के कहने पे डाला था और किसी के कहने पे चला गया, उन्हीं के कहने पे डाला था और उन्हीं के कहने पे चला जाएगा। ना हमारा उसमें कोई इशू रोल था, ना आज हमारा उसमें कोई रोल है। तो अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान आज क्रॉस रोड पर है। आज पाकिस्तान क्रॉस रोड पर है इसलिए कि पाकिस्तान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी सोशल, मॉरल और इकोनॉमिक वैल्यूज क्या होंगी। क्या हम रीइंकार्नेशन ऑफ तालिबानिज्म चाहते हैं इस कंट्री में? अगर हम रीइंकार्नेशन ऑफ तालिबानिज्म चाहते हैं तो मेरी बात आप लिख लें, कभी पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी माशरे ने कभी तरक्की नहीं की जब तक उसकी औरत बाहर काम नहीं करेगी। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, सोच भी नहीं सकते आप। तो आप फैसला करें कि आज आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि आप औरत को जगह देते रहना चाहते हैं। गारमेंट फैक्ट्री में औरतें जाएंगी या नहीं जाएंगी, औरतें काम करेंगी या नहीं करेंगी, उनको आपने पर्दे में बैठा के हिजाब की कहानियां लगानी है, अल्लाह अकबर के नारे लगवाने, लगाएं। वो लगा सकता है जिसकी जेब में खाने को पैसे हो। इसकी जेब में खाने को पैसे नहीं हो, ये ऐशी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ऐशी अफोर्ड, अगर ये ऐशी करनी है तो फिर आपकी जेब में पैसे नहीं है। तो मैं आपको आज गारंटी कर सकता हूं कि 30 की एक्सपोर्ट है, 32 कर लेंगे, 33 कर लेंगे, ये इनको 5 साल लगेंगे 40 पहुंचने में। इसलिए नहीं पहुंच सकते कि इनका इनहेरेंट इफेक्ट है, इनहेरेंट इफेक्ट है, ये नहीं कर सकते। लास्ट बात एक्सपोर्ट के सिलसिले में मेरी बात यह है कि एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री फैसलाबाद में नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल कराची से इंपोर्ट होगा, फैसलाबाद जाएगा, मशीनरी कराची से इंपोर्ट होगी, फैसलाबाद जाएगी, एनर्जी कराची में इंपोर्ट होगी, फैसलाबाद जाएगी, फैसलाबाद से कराची आएगी और कराची से एक्सपोर्ट होगा। ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? आपको कराची में एक्सपोर्ट की 2-3 बड़े सेक्टर लगाने पड़ेंगे। आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। पाकिस्तान की इकोनॉमी के 2 पार्ट होंगे, एक होगा साउथ पाकिस्तान, एक होगा नॉर्थ पाकिस्तान। साउथ पाकिस्तान जो होगा वो एक्सपोर्ट के लिए अपनी इंडस्ट्री चलाएगा और नॉर्थ पाकिस्तान कंजम्पशन के लिए चलाएगा। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली नहीं चल सकता। आपको पाकिस्तान को 2 साउथ पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान पढ़े, चाइना की हिस्ट्री पढ़े। चाइना कहां पे एक्सपोर्ट बढ़ा, चाइना ने कहां से मुल्क चलाया। हमारे शौक तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, मगर हमारी अकल नहीं है उसके अंदर। जब तक आप साउथ पाकिस्तान को, चाहे वो साउथ पाकिस्तान कराची हो या ग्वादर हो, जो कुछ भी हो, जब तक आप साउथ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे जब तक नहीं चल सकता। और सिमिलरली जो नॉर्थ पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री चलाएगा। पॉलिटिकल बुनियादों पर माशी फैसले नहीं हो सकते, पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर माशी फैसले नहीं हो सकते। तो मैं जस्ट टू कंक्लूड, मैं 3 क्रॉस रोड की बात कर रहा हूं। पहला क्रॉस रोड ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन अंडर द सपोर्ट ऑफ द रेलेवेंट पीपल फॉर एट लीस्ट पीरियड ऑफ 20 years। एक आदमी, इसलिए मैं कहता हूं सुहेल भाई कि बंदा हम ढूंढ रहे हैं 50 साल वाला। 50 साल का हो ना तो कम से कम 20 साल चले ना आगे। एक बंदा जो 50 साल का हो, अच्छा इकोनॉमिस्ट हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो और पाकिस्तानी हो, उसको आप लाके बिठाएं डिप्टी प्लानिंग कमीशन 20 साल के लिए और उसमें रिलाई करें। यार ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, आती है जाती है, ठीक है ना। ये आदमी डिप्टी प्लानिंग कमीशन ये चलाएगा। इंडिया में एक आदमी था, आप सारे अभी गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मोंटेक सिंह आलोवालिया। मोंटेक सिंह आलोवालिया 2004 से लेकर शायद 2018 तक डिप्टी जनरल प्लानिंग कमीशन रहा। उसने 12 गवर्नमेंट गुजारी। आपको चाहिए 50 साल डिप्टी जनरल प्लानिंग कमीशन, एजुकेटेड इन वेस्ट, विदाउट बियर्ड and with a wife without hijab, and that person should lead Pakistan for another 20 years on the economic side by controlling all the regulators in Pakistan sitting in Karachi, if you want to run this country in a proper manner. Second crossroad is
that you have to undo this pro-Talibanization approach in Pakistan and let the ladies to work, make a conducive environment for Pakistan to ladies to work. The third paradigm is that you have to divide Pakistan economic policy to two parts. One is sort of South Pakistan, other is sort of North Pakistan. And if you want to develop export, then you have to develop export in the southern part of Pakistan because that is your cheaper level. It's cheaper for Pakistan than the north part of Pakistan. So, and I think all these matters are already taking place, and inshallah you will hear the good news very soon. Thank you.